Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is water resource management along with objective and usage and importance of water resource management. The particular topic related to issue of conservation and environmental regeneration in B.Ed semester 4 पेपर नंबर ऑप्शनल दैट इज 13. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ पेपर नंबर 13 ऑप्शनल पेपर इशूज ऑफ कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल रीजनरेशन जो कि B.Ed सेमेस्टर 4 में है और यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत टॉपिक है जल संसाधन की प्रबंधन अर्थात वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि हम सभी जानते हैं वाटर यानी उसका प्रबंधन, साथ ही साथ एक संसाधन के रूप में उसकी उपयोगिता। पानी यानी जल महत्वपूर्ण है जीवन के एग्जिस्टेंस यानी सर्वाइवल के लिए, तो उचित तरीके से अगर इसका प्रबंधन हो तभी इसका उपयोग सदैव और अधिक दिन तक हो सकता है, अन्यथा पानी बर्बाद होता जाएगा और अस्तित्व पर यानी मानव के अस्तित्व के यानी लिविंग बीइंग के अस्तित्व पर भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो आवश्यकता निश्चित ही है कि कैसे इसकी प्लानिंग की जाए, मैनेजिंग की जाए एंड कैसे इसके विकास के बारे में यानी उचित मात्रा में जल प्रबंधन करके पानी के विकसित किया जाए, पानी के संसाधन स्रोत को विकसित किया जाए जिससे कि अत्यधिक मात्रा में मीठे जल की समस्या न हो। जैसा कि हम वर्तमान में एक घटना में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका में खासकर देखा गया कि कुछ क्षेत्रों में मीठे पानी की कमी हो गई, समस्याएं उत्पन्न हो गई और इंतजार किया जाने लगा कि कब वर्षा ऋतु आएगी। फिर भी पानी का अगर सही तरीके से संग्रहण यानी हार्वेस्टिंग न हो तो फिर पानी वो बर्बाद हो जाता है। तो मैं अब आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now again welcome to video lecture class B.Ed semester 4 paper 13 optional paper issues of conservation and environmental regeneration. Now the particular topic is divided into three contents: water resource management, that is introductory part, objective of water resource management, and last one is importance and usage of water resource management. First introduce the particular topic water resource management. Water resource management is the activity of planning, developing, distributing and managing the optimum use of water resources. Next point, it is an aspect of water cycle management. Next point, water is essential for our survival. The field of water resources management will have to continue to adapt to the current and future issues facing the allocation of water. Next point, with the growing uncertainties of global climate change and the long term impacts of management actions, the decision making will be even more difficult. It is likely that ongoing climate change will lead to situations that have not been encountered. As a result, alternative management strategies are sought for in order to avoid setbacks in the allocation of water resources. Next point, ideally, water resource management planning has regard to all the competing demands of water and seeks to allocate water on an equitable basis to satisfy all usage and demands. As with other resources management, this is rarely possible in practices. Now, next one is objective of water resource management. Water management is the management of water resources under set policies and regulations. Number one, that is number two, water, once an abundant natural resources, is becoming a more valuable commodity due to drought and overuse. Now, next, the goal of water resource management is sustainable water use. Full stop. In order to achieve the
effective and sustainable water resources management required for proper monitoring, evaluating, and controlling works are summarized as follows. The main objective: number 1, water quantity, water quality, drought management, next drainage water regulation, and last one is facilities maintenance. Now, usage and importance of water resource management, that is important, and usage of water resource management. Water management, first point, water management is important since it helps determine future irrigation expectations. Number 2, water resource management is a very important issue from several angles, such as development of water bodies for future, protection of available water bodies from pollution and over exploitation, and to prevent disputes. Next point, extensive hydrological information is necessary to develop water resources and protect them. Next point, water management helps in developing efficient irrigation practices for the betterment of agriculture in the country. Next point, proper utilization of water in our homes, TWO2, can save these precious resources. Last one is, water management teaches us to use a limited amount of water whenever required. This keeps every citizen accountable for any wastage that occurs. Now, we need to preserve water resources for future generation. There are different statutory commissions established by the government and NGO that are working towards sustainable protection of water resources. However, it is grassroots level changes that bring a positive impact, and citizens initiative matters the most. नाउ ऑल थिंग इन हिंदी, अब सभी चीज़ों को मैं थोड़ा हिंदी में बता दूं। सर्वप्रथम इनको 3 भागों में बांटा गया है। जल संसाधन, जो कि इसके परिचय, दूसरा जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य, और लास्ट में जल संसाधन प्रबंधन का उपयोग और महत्व। सर्वप्रथम मैं इसके परिचय के बारे में बात करूँ, इंट्रोडक्शन। जल संसाधन प्रबंधन, जल संसाधन प्रबंधन जल संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग की योजना, विकास, वितरण और प्रबंधन की गतिविधि है। यह जल चक्र प्रबंधन का एक आधार है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे अस्तित्व के लिए जल आवश्यक है, अतः जल संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र को कैसे आवंटित किया जाए, या कह सकते हैं कि जल का बंटवारा सभी क्षेत्रों में कैसे किया जाए, यह वर्तमान और भविष्य के मुद्दों में से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन की बढ़ती अनिश्चितताओं और प्रबंधन क्रियाओं के दीर्घकालीन प्रभावों के साथ निर्णय लेना और भी कठिन हो जाता है कि चल रहे जो जलवायु परिवर्तन की स्थितियां हैं, उस अनुसार यह कहना आवश्यक होगा, या ये बात कह सकते हैं कि उन्हें सामना करना पड़ेगा कि वर्तमान समय में जो जल संसाधन के असफलता का कारण है और कैसे इस असफलताओं को समाप्त किया जाए, यह रणनीतियाँ एक चुनौती के तौर पर निश्चित ही होंगी। आइडियली यानी आदर्श रूप से कह सकते हैं कि जल संसाधन प्रबंधन योजना में पानी के लिए यानी जल के लिए सभी प्रतिस्पर्धी मांगों के संबंध में है और सभी उपयोगों और मांगों को पूरा करने के लिए एक समान आधार पर पानी आवंटित करना चाहता है, जैसा कि अन्य संसाधन प्रबंधन के साथ होता है, और सामान्यतः व्यवहार में यह बहुत कम संभव हो पाता है। अब मैं जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य के बारे में थोड़ा बात करूं। जल प्रबंधन यानी जल संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य को निर्धारित करने के लिए नीतियां और नियम अति महत्वपूर्ण हैं। एक प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों
जो सूखे और अति प्रयोग के कारण अधिक मूल्यवान वस्तु बन रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि जल संसाधन प्रबंधन का लक्ष्य अस्थायी जल उपयोग है। प्रभावी और अस्थायी जल संसाधन प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए उचित निगरानी के साथ साथ आवश्यक तथा मूल्यांकन और नियंत्रण करना भी अति आवश्यक है। जल संसाधन प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्यों में नंबर 1 पानी की मात्रा को ध्यान रखना, पानी की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखना, सूखा प्रबंधन पर कार्य करना, जल निकासी विनिमय के नियम बनाना, रख रखाव की सुविधा पर ध्यान रखना। अब मैं जल संसाधन प्रबंधन का उपयोग और महत्व पर बात करूं। जल प्रबंधन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भविष्य की सिंचाई की उम्मीदों को निर्धारित करने में मदद करता है। सेकेंड पॉइंट, जल संसाधन प्रबंधन कई कोणों से यानी कई कारणों से कई क्षेत्रों से बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, जैसा कि भविष्य के लिए जल निकायों का विकास, प्रदूषण से उपलब्ध जल निकायों का संरक्षण और शोषण और विवादों को रोकना अति महत्वपूर्ण है। जल संसाधनों को विकसित करने और उनकी सुरक्षा के लिए व्यापक जल विज्ञान संबंधी जानकारी भी आवश्यक है। जल प्रबंधन देश में कृषि की बेहतरी के लिए कुशल सिंचाई पद्धतियों को विकसित करना भी अति आवश्यक है। हमारे घरों में पानी का उचित उपयोग भी इस अनमोल संसाधन को बचा सकता है। जल प्रबंधन हमें आवश्यकता होने पर सीमित मात्राएं पानी का उपयोग करना सिखाता है। साथ ही यह प्रत्येक नागरिक को होने वाले किसी भी अपव्यय के लिए भी पूरी तरह से जानकारी देता है। इस प्रकार से हम लास्ट में ये बात कह सकते हैं कि हमें भावी पीढ़ियों के लिए जल संसाधनों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा अलग अलग आयोग को स्थापित करके जल संसाधन के सतत संरक्षण की दिशा में काम करने की आवश्यकता है। और लास्ट में जमीनी स्तर पर बदलाव करने के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव और नागरिकों को इससे पहल करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से यह टॉपिक समाप्त हुआ। अगले क्लास में मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।